ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज जुमा है और मार्च की 21 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूँ जावेद चौधरी। हमास के तल अबीब पर 3 रॉकेट फायर। इसराइल का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को खत्म करने के हुक्म नामे पर दस्तखत कर दिए। जानिए ट्रंप ने अमेरिकी महकमा तालीम को बंद करने का फैसला क्यों किया। United States spends more money on education by far than any other country and spends likewise by far more money per pupil than any country, and it's not even close, but yet we rank near the bottom of the list in terms of success. अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अमेरिकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को 2 साल से ज्यादा अरसा कैद में रखने के बाद रिहा कर दिया। افغانستان اسلامي امارت د تل په څیر یو ځل بیا په ډاګه کوي چې د خبرو تفاهم او ډیپلوماسۍ له لارې د ټولو مسایلو د حل لپاره لارې چارې پیدا کېدلی شي او د یاد امریکایي تبع د خوشي کولو ګام هم د شنت له مخې پورته سو چې دا شی ټول لورو پاکستان میں لاپتہ پیاروں کی متلاشی بلوچ خواتین کا کہنا ہے کہ دل سے ڈر ختم ہو چکا، بس کسی بھی طرح ہمیں اپنے بھائیوں کو واپس لانا ہے۔ میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تم پڑھو، تمہیں پڑھنا ہے، میں میٹرک کے بعد تمہیں کوئٹہ بھیجوں گا پڑھائی کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ میں کوئٹہ جاؤں گی تو اسی بھائی کی تصویر ہوگی میرے ہاتھ میں، اور میں کسی یونیورسٹی اور کالج نہیں جاؤں گی، میں کیمپ کے سامنے جاؤں گی، سڑک پر بیٹھوں گی۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ شاید ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے سروائیو کیا اس چیز کو۔ اگر سو انداز کو کب تو ہوی ہٹا گوہر کا پھر کا لوٹ کا ہوی برا کب سی خس من کا چودن کو سی میرا یہ ڈکی ہے۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کو وراثت کے حق سے محروم رکھنے والی رسمیں غیر قانونی قرار دے دیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف بڑا فیصلہ۔ روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان میں مقیم رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف کیس میں درخواست گزاروں کو ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم۔ اور جانیے مغل بادشاہ اورنگزیب کی 13.25 روپے میں بنی قبر کے خلاف انڈیا میں احتجاج اور ہنگامے کیوں۔ انڈیا کے ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ دنوں ہندو تنظیموں کی جانب سے مغل بادشاہ اورنگزیب کی قبر کھودنے کے مطالبے پر زور دینے کے لیے جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے۔ ترکیہ میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار اردوغان کے مخالف اور استنبول کے میئر اکرم امام اولو کے لیے 10,000 لوگوں کا شدید احتجاج۔ استنبول کے میئر اور صدر اردوغان کے ممکنہ صدارتی حریف اکرم امام اولو کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جانیے کائنات کی پر اسرار قوت ڈارک انرجی کے بارے میں جس نے آئنسٹائن کے کائناتی نظریے کو ہلا کر رکھ دیا۔ Einstein called this term cosmological constant, clarifying that, unlike gravity, it was independent of matter density. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ حماس نے جمعرات کی سپہر غزہ کی پٹی سے تل ابیب کی طرف راکٹوں سے حملہ کرنے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شہریوں کے قتل عام کے جواب میں اٹھایا گیا اقدام ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ القسام بریگیڈ نے شہریوں کے خلاف صہیونی قتل عام کے جواب میں M90 راکٹوں سے تل ابیب شہر پر بمباری کی ہے۔
दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने जनूबी गजा से इसराइल में दाखिल होने वाले 3 रॉकेटों का पता लगाया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली फजाइया ने एक रॉकेट को कामयाबी से रोका और 2 इजाफी रॉकेट एक खुले इलाके में जा गिरे। ये बात एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि जुमेरात को गजा पर इसराइली फजाई हमलों में कम अज कम 91 फलस्तीनी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। The Israeli military has expanded its ground operation into Rafah in southern Gaza, stepping up the offensive that resumed on Tuesday when Israel launched dozens of airstrikes, ending the ceasefire. This afternoon, Hamas gave its first military response, firing rockets towards Tel Aviv. तिब्बी ज़राए ने बताया कि एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस के अमले ने मरने वालों और जख्मियों को खान यूनस में वाक़े यूरोपी गजा अस्पताल में मुंतकिल किया है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि गजा में इसराइल ने अस्पतालों और मरीजों को हदफ बनाया है, जो कि जंगी जराइम के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ऐलान किया कि गजा में जनरल सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह राशिद जी जू गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान गजा की पट्टी में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले हमलों में मारे गए हैं, जबकि व्हाइट हाउस ने जुमेरात को ऐलान किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फजाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों को दोबारा शुरू करने की मुकम्मल हिमायत करते हैं, जिसमें हमास को नई जंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लीविट ने गजा में जंग बंदी के बहाली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिकी सदर इसराइल और इसराइली फौज की मुकम्मल हिमायत करते हैं और उन तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं जो उन्होंने हालिया दिनों में किए हैं। The president made it very clear to Hamas that if they did not release all of the hostages, there would be all hell to pay. And unfortunately, Hamas chose to play games in the media with lives. This situation, let's not forget, is completely the fault of Hamas when they launched that brutal attack on Israel on October 7th. And the president has made it very clear that he wants all of those hostages to come home, and he fully supports Israel and the IDF in the actions that they've taken in recent days. दूसरी जानिब इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा कि फौज और इसराइली दाखिली सलामती सर्विस ने हालिया दिनों में हमास की जनरल सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह राशिद जी जू को हलाक कर दिया है, जो जुलाई 2024 में अपने पेशरो सामी उदिया के मरने के बाद इस मनसब पर फाइज हुए थे। ताहम हमास ने अभी तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। BBC के गजा के नामा निगार ने बताया कि इसराइली जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी के शहरों खान यूनस और रफा के इलाकों पर पुरतशद्दद हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिससे एक ही वक्त में 6 आबाद मकानात तबाह हो गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक बयान में यह भी कहा कि फौज और दाखिली सिक्योरिटी सर्विस ने बैतुल लाहिया के इलाके में दहशत गर्दी के बुनियादी ढांचे और हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पॉइंट्स पर हमला किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत को उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों और क़दामत पसंदों के देरीना मकसद पूरा करने से जोड़ा जा रहा है। सदर ट्रंप ने महकमा तालीम की कारकर्दगी को होश रुबा नाकामियां करार दिया और इस अज़म का इजहार किया कि वो जल्दी इस कंट्रोल से हासिल होने वाली रकम उनकी रियासतों को वापस कर देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि हम जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे बंद करने जा रहे हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने यह तस्लीम किया है कि एजेंसी को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए कांग्रेस में कानून साजी की ज़रूरत होगी। वाज़ेह है कि ये इकदाम पहले ही उन अफराद की जानिब से कानूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो एजेंसी की बंदिश और गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान करदा उसके अमले में बड़े पैमाने पर कटौतियों को रोकना चाहते हैं। जुमेरात को व्हाइट हाउस में स्कूल की मेज़ों पर बैठे बच्चों के दरमियान घिरे हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तालीम पर किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में कहीं ज़्यादा रकम खर्च करता है। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके बावजूद अमेरिकी तुलबा दर्जा बंदी में सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। After 45 years, the United States spends more money on education by far than any other country and spends likewise by far more money per pupil than any country, and it's not even close, but yet
we rank near the bottom of the list in terms of success. व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि उनकी इंतजामिया कानूनी दायराकार में आने वाले हिस्सों में कटौती करेगी। ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप का ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मुमकिना तौर पर उसी तरह के कानूनी चैलेंजेस का सामना करेगा जैसा ट्रंप इंतजामिया के वफाकी हुकूमत के हुजम को कम करने के लिए किए गए दीगर इक़दामात चैलेंज किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की दस्तखती तकरीब के दौरान सदर ट्रंप ने महकमा तालीम की सरबराह लुंडा मैक की खिदमात को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आखिरी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होंगी। ट्रंप ने कहा कि वो उनके लिए इंतजामिया में कोई और जिम्मेदारी तलाश करेंगे। Our students to the states where just some of the governors here are so happy about this. They want education to come back to them, to come back to the states, and they're going to do a phenomenal job. ट्रंप के ऑर्डर पर साइन करने के बाद लुजियाना के रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी ने ऐलान किया कि वो इस महकमे को बंद करने के लिए कानून साजी का इरादा रखते हैं। ताहम सेनेट में किसी वफाकी महकमे को बंद करने के लिए 60 वोट दरकार होते हैं, जबकि रिपब्लिकन को सेनेट में मामूली अक्सरियत हासिल है, जिससे उनका मकसद हासिल करना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेसमैन को 2 साल से ज़्यादा अरसे कैद में रखने के बाद रिहा कर दिया है। जॉर्ज ग्लेसमैन अमेरिका की डेल्टा एयरलाइन में बतौर मैकेनिक काम करते थे। दिसंबर 2022 में वो सेहत की गर्ज से अफगानिस्तान गए थे, तहम उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रहे कि कैदियों के मामलात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी मुशीर एडम बुलर समेत दीगर अमरीकी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां तालिबान हुकूमत के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी से उनकी मुलाकात हुई थी। जॉर्ज ग्लेसमैन की रिहाई की तस्दीक करते हुए तालिबान की वजारत खारिजा ने बयान में कहा कि जॉर्ज ग्लेसमैन की रिहाई इंसानी बुनियादों पर और नेक नियति के इजहार के तौर पर की गई है। افغانستان اسلامي امارت د تل په څیر یو ځل بیا په ډاګه کوي چې د خبرو تفاهم او ډیپلوماسۍ له لارې د ټولو مسایلو د حل لپاره لارې چارې پیدا کېدلی شي او د یاد امریکایي تبع د خوشي کولو ګام هم د شنیت له مخې پورته سو چې دا شی ټولو لورو سره په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو سره د متقابل درناوي او ګټو پر بنسټ واقعي تعامل ته چمتو دی۔ दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने इस पेश रफ्त को मस्बत और तामीरी कदम करार दिया है। वाज़ेह है कि अमरीकी वफ्द और तालिबान के दरमियान ये मुलाकात फ्री कैन के दरमियान सबसे आला सतह के बराह रास्त मुज़ाकरात समझे जा रहे हैं, जिनका इनाकाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनवरी में हल्फ बर्दारी के बाद हुआ है। BBC पश्तो ने तालिबान की वजारत खारिजा का हवाला देते हुए कहा है कि अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ्द के साथ बातचीत में कहा है कि दोनों मुमालिक के लिए ज़रूरी है कि वो 20 साला जंग के असरात से निकलें और एक दूसरे के साथ मस्बत सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात रखें। तालिबान हुकूमत के बयान में यह भी कहा गया है कि एडम बॉलर ने कैदियों के हवाले से अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एतमाद साजी में पेश रफ्त को एक अच्छा कदम करार दिया है। ताहम बयान में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि दौरे के दौरान किन कैदियों के तबादले से मुतल्लिक बातचीत की गई है। सामीन, पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल अपने लापता प्यारों की तलाश में हैं। वो लापता अफराद जिनके बारे में इन ख़ानदानों का दावा है कि इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरी तौर पर लापता किया है। पाकिस्तान की हुकूमत इन इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद करती है, लेकिन इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे अब भी सूबे में जबरी गुमशुदगियों और मुबैना मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट कर रहे हैं। इस तमाम सफ़र के दौरान अब एक नई नस्ल सड़कों और एहतजाजी कैंपों में है। BBC ने उन ख़वातीन से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि मुबैना जबरी गुमशुदगियों की वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई है। सुनिए फरत जावेद की ये रिपोर्ट। जब मैं पहली लाश की तरफ गई, उसकी आंखें भी निकाली गई थी, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके दांत भी निकाले गए थे। ये चेहरा है उनका जो लापता है। मना हवे कोड़ सी खफा मेरा देदा मेरा जबरी गुमशुदगियों का मैं तकरीबन 5 साल बाद उनके कब्रिस्तान गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि खुद को कि अब वो अजियत में भी नहीं है।
मावराए अदालत कत्ल का। रश में मैं अपने अब्बू को ढूंढती हूँ। मैं हर बंदे का चेहरा देखती हूँ, लेकिन आज तक मेरे अब्बू नहीं मिले। और उस जंग का जो अपने प्यारों की वापसी के लिए जारी है। ये कहानी बलोच ख़ानदानों की उन ख़वातीन की है जो 3 नस्लों से अपने प्यारों की तलाश में सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की ज़मीन दुख और इंतज़ार की कहानियों से भरी है। ये उन ख़वातीन की कहानियाँ हैं जो अपने ख़ानदान के लापता अफराद का नामो निशान ढूंढती हैं या हस्पतालों के मुर्दा खानों में उनकी मसख शुदा लाशें। ये ख़वातीन लापता अफराद की तलाश में कभी अलामती कब्रों तक पहुंचती हैं तो कभी सूबे भर की गलियों में एहतजाज करती हैं। इन्हीं में एक 70 साला जन्नत बीबी हैं। उनके मुताबिक उनके बेटे 2012 में मुबैना जबरी गुमशुदगी का निशाना बने। 12 साल से उनकी ज़िंदगी एहतजाज और दुआओं के बीच गुजर रही है। ये दुआ जमी साल नी असुल्ला पतई गारे बरकमा होटला जुटई दो मर्द निश्चिय सपजिया यके निश्चिय आपली रहा यके तकिया हर दो जुर्त गसी सामी रोटा आमर गटसवस का मई बच गारे असुल्ला पतई मना मालूम नेसनी 12 साल भी सही मगुड़सा माँ इस्लामाबाद सगा माँ धकवाड़ सगा माँ लटवाड़ सगा माँ सुरतार सगा माँ बली खुंडा चर सगा गटसो मात का अंदर हिची मालूम नहीं सी गड़ता गदमा रोवार सगा दिमा हिची मालूम नहीं सगा बस ऐसे नहीं करे बस बस चे गुस्सा बसी चे तंदका में दर्द वाट सगा मत दरिया सगा मसला बाजार सगा मरोवार सगा मगर तो मैं सुंगार सगा मरा भाई बैल हमें दक हमें बैल हमें कुछ नहीं। बलूचिस्तान में शोरश पाकिस्तान के क़याम से पहले से जारी है। ताहम इंसर्जेंसी की मौजूदा लहर 1948 में उस वक्त शुरू हुई जब मुतअद्दिद बलोच सरदारों ने सूबे की पाकिस्तान के साथ इल्हाक की मुखालफत की। ये इब्तदाई मुखालफत बलोच अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बदएतमादी की बुनियाद बन गई जो आज तक दोनों तरफ से जारी है। सब कुछ खत्म हो गया। सायरा बलोच सिर्फ 13 साल की थीं जब उनके भाई और बहनोई को सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में ले लिया। 31 अगस्त का वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई थी और भाई पिकनिक पे गया हुआ था, तो हम इंतज़ार में थे कि वो आएगा और मैं उसे अपना रिज़ल्ट कार्ड दिखाऊंगी। तो हमें पता नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होगा और उस दिन मेरे भाइयों के नंबर्स भी बंद थे। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, असलहा और गोला बारूद बरामद। 1 सितंबर को हमें पता चला, उनकी तस्वीरें हमने देखी तशद्दुद और रियासती इदारों की जानिब से सीटीडी की जानिब से ये बयान भी जारी किया गया था कि हमने इतने दहशतगर्द पकड़े हैं, वो अफ़गानिस्तान जा रहे थे और हमने उनको पकड़ा हुआ है। मेरे भाइयों की तस्वीरें हमने तब देखी और हम बिल्कुल हैरान हो गए
क्योंकि मेरा भाई एक सरकारी मुलाजिम था, पुलिस में था। सबसे पहले तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा भाई है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ था। हमने अपनी वालदा को 4 महीनों तक वो तस्वीर ही नहीं दिखाई। गुज़श्ता कई दहाइयों से बलोच कौम परस्त गिरोह पाकिस्तानी रियासत से सवाल करते आए हैं। इनका कहना है कि बलोच अवाम को इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा रखा गया है, इन्हें सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है और बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल का फ़ायदा मुकामी आबादी को नहीं मिलता। बलूचिस्तान में शोरश 2000 की दहाई में शिद्दत इख्तियार कर गई, ख़ास तौर पर 2006 में जब बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी को एक फ़ौजी ऑपरेशन में हलाक किया गया। इसके बाद बलूचिस्तान में जहां रियासत मुखालिफ एहतजाज के साथ शिद्दत पसंदों की मुसल्लह सरगर्मियों में इजाफा हुआ, वहीं उनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों और जबरी गुमशुदगियों और मसख शुदा लाशें मिलने का सिलसिला भी बढ़ गया। आज से पूरे 10 साल पहले ये वो जगह है जहां इज्तमाई कब्रें मिलीं। इनमें लापता अफराद की लाशें थीं। ये लाशें इस कदर डिसफिगर हो चुकी थीं कि इनमें से बेशतर की शनाख्त ही नहीं हो सकी। ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में अपनी नौयत का पहला ऐसा खौफनाक वाक़या था जिसने मुल्क को हिला के रख दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये उन फैमिलीज़ के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था जो कई सालों से अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। इस डिस्कवरी के बाद उनमें से चंद एक को उनके सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन बाकी सब के सवाल कई गुना बढ़ गए। From the starting 2011 till 2017 में मेरी ज़िंदगी के नाइटमेयर्स टॉर्चर होते थे। डॉक्टर महरंग बलोच के वालिद की लाश 3 साल की मुबैना जबरी गुमशुदगी के बाद मिली। 2011 में हम लोग घर में थे, मैं स्कूल से वापस आई थी, फ़ोन कॉल आया कि लाश मिली है उधर से। तो मुझे याद है उस दौरान हम सब रो रहे थे, घर में मर्द औरत हम सब रो रहे थे, हम सजदे में थे कि ये बात झूठ निकले, ये बात किसी न किसी तरीके से झूठ निकले। जब मेरे वालिद की लाश आई थी, वही कपड़े, वही सफ़ेद जोड़ा जो फटा हुआ था, आधी कमीज़ फटी हुई थी, उसी हालत में उसकी लाश फेंकी गई। पाँव में एक जूता था, दूसरे में नहीं था। बहुत तकलीफ़ था, बहुत तकलीफ़ था। वो रात ऐसी थी, शायद उस वक्त मैंने यही कहा था कि इसकी सुबह कभी ना हो। इसी दौरान ही मेरे वालिद के साथ मेरी भी डेथ हो जाए तो बेहतर है। इस बैकग्राउंड में कई मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमें भी काम कर रही थीं, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बलोच कौम परस्त गिरोहों और हुकूमत के दरमियान इस शोरिश और महरूमी के एहसास को इस्तेमाल किया और अपना असर व रसूख बढ़ाया। पाकिस्तान की रियासत ये इल्ज़ाम भी लगाती है कि इन मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों को बैरून मुल्क से मदद भी हासिल है। इनमें बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई ममालिक ने दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में डाला है। लेकिन रियासत और इन मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों के दरमियान जारी इस लड़ाई की एक बड़ी कीमत उन ख़वातीन को देनी पड़ी जिन्हें अब घरों से बाहर निकलना था। 2009 से लेकर 2011 तक हमारे चक्करे प्रेस क्लब से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में होते थे, मुर्दा खानों में हम जाते थे लाश आइडेंटिफिकेशन के लिए। हमें कहा गया कि अस्पताल में कुछ लाशें पड़ी हैं, तो आप लोग जाके अपने भाइयों को वहाँ पे देखें। और मुझे आज भी याद है जब हम वो लाशें देखने गए, तो जब मैं पहली लाश की तरफ गई और उसकी आंखें भी निकाली गई थी, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके दांत भी निकाले गए थे, उसके सीने पे दाग, हाथ भी जले हुए थे, पैर, वो बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा था कि वो कौन है। उस लाश को देखने के बाद मैं किसी दूसरे लाश को देख भी नहीं पाई। और मुझे आज भी याद है कि 3 दिनों तक मैं सो नहीं पा रही थी। मैं जब भी आंखें बंद कर रही थी वो लाश मेरे सामने आती।
अजीब सी चीज़ों पे यकीन रखने लगी थी। ये कहा गया था कि एक तावीज़ उठाओ, उसको दरख्त पे लटकाओ, और जितना वो तावीज़ हिलेगी हवा के झोंके से, उतना ही वो जो लोग तुम्हारे वालिद को लेकर गए उनके दिल में रहम आ जाएगा। बाजी गुररमा बाजी फाला जन गए कुराबाद से आ गए वो दा नसीए दा दसा चर रहे हैं आया मां फाला वो दा ये हफ्ता रोज बरवा आया फाला जन से बच जिंदा है अल्लाह कारी ऐसा तावी जान दिया इधर भोपाया दस गुस्सी बच्ची जिंदा है अल्लाह कारी सी अर्थों में दा बस इधर मैं कुकुड़ को नहीं इधर बांगो है मजा है तावी दस सी शबर गुट्टा बंदी निकते बच्चा अर्था गुड़ा आया खुश हमारा बंगोद बस्ती अंतरस्काद बस्तियाँ और मार तो निमित्ती बस नहीं चौकना। आज भी छोटी सी आहट होती है तो हम लोग दरवाजे की तरफ जाते हैं कि शायद इस अंधेरी रात में उन्हें छोड़ दिया गया है। मैं तकरीबन 5 साल बाद उनके कब्रिस्तान गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि खुद को कि अब वो अजियत में भी नहीं है, और मैंने कोशिश की कि जो मिट्टी का ढेर है उसको मैं गले लगा सकूं और शायद वो एहसास मुझे आ सके, लेकिन नहीं आया। और वो एहसास अब भी है कि किस तरह उन्हें टॉर्चर करके मारा गया था। मेरा भाई मुझसे हमेशा कहा करता था कि तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, मैं मैट्रिक के बाद तुम्हें क्वेटा भेजूंगा पढ़ाई के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जब पहली दफ़ा मैं क्वेटा जाऊंगी तो उसी भाई की तस्वीर होगी मेरे हाथ में, और मैं किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं कैंप के सामने जाऊंगी सड़क पर बैठने। मेरी जो कॉपियाँ होती थी वो 2-2 के हिसाब से मेरी वालदा लेती थी। पहले 2 कॉपीज़ पर 1 महीने बाद 2 कॉपीज़, फिर 2 महीने बाद फिर 2 कॉपीज़। तो मेरा होमवर्क जो है ना वो मुझ पर बर्डन हो जाता था। ऐसा बहुत मर्तबा हुआ कि शायद हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सरवाइव किया उस चीज़ को। मगर सो अंदाज को कब सो हवे हट्टा गोहर का पिंड का लोट का हवे बर्रा कब सिया खस मन का चोदन गुसी मेरे गांव ये डुकी है नजरो ये मवा मरवा है का दुष्क नहीं जराना कि हम ये निसार रो हमारा अंदर पतड़ी सी कस नहीं अल्लाह सब हमने कस नहीं। मेरा भाई एक सरकारी मुलाजिम था और वो हमारे घर का सरमाया है, और उसके लापता होने से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हमारी पढ़ाई, हमारे ख्वाहिशात, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी वो एक तकलीफ़ भरी ज़िंदगी में बदल गई, एक ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार। ये जो जंग है इसमें जो जेंडर कॉस्ट है, जिस तरह जो फीमेल्स जो बर्डन बर्दाश्त कर रही है, उसका मुझे सबसे ज़्यादा एहसास इसलिए क्योंकि मैंने उस एंगल को देखा है। मुझे याद है मेरी मेडिकल की स्टडीज़ के दौरान मेरी वालदा ने फर्स्ट ईयर की फ़ीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फ़ीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीज़ों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वाज द ट्रॉमा। और आज भी मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती हूँ तो वो डिप्रेशन की गोलियां लिखती है मेरे। डॉक्टर ने मुझे कहा तुम इस छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो। देयर इज नो क्लोज एंडिंग। ये जो एक दरिंदगी इन्होंने फैलाई हुई है ना, लाशें फेंकना, दे से दैट इट विल क्लोज, ये ख़त्म कर देगा सारी चीज़ें। इनको ये नहीं पता है कि ये उसको इतने बड़े लेवल से ओपन कर रहा है कि आपकी सोच भी नहीं है। बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला आलमी इदारों की मजम्मत और तहकीकाती कमीशन बनाए जाने के बावजूद नहीं रुक सका। गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक उनके पास 2004 से अब तक बलूचिस्तान में तकरीबन 7,000 अफराद के केसेस रजिस्टर्ड हैं।
दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 2011 से दिसंबर 2024 तक 2800 से ज़ायद लापता अफराद के मुकदमात सामने आए और अब सिर्फ 420 केसेस हल होना बाकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत सूबे में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात को बार बार मुस्तरद करती रही है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का ये दावा भी है कि मिसिंग पर्सनस में शामिल कई अफराद ने मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रोहों या अस्करियत पसंद तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर ली है या वो सूबा छोड़कर जा चुके हैं। हुकाम ये भी कहते हैं कि सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल ये तकाजा करती है कि एक फौरी और मौसर एक्शन लिया जाए। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि मिसिंग पर्सन कोई इशू नहीं है, ना मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मिसिंग पर्सन कोई एक भी हो तो वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक इतना मुनज़्ज़म अंदाज से स्टेट के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा किया गया मिसिंग पर्सनस का और बलूचिस्तान के बच्चे बच्चे के कान में डाला गया कि ये मिसिंग पर्सनस और बहुत हद तक उसको किया गया। अब ये क्योंकि एक डाइसी सब्जेक्ट है, सेल्फ डिसअपीयरेंसेस हैं यहाँ पर, फिर ये कौन आइडेंटिफाई करेगा या ये कौन करेगा कि किसने किसको मिसिंग किया है? ये तो अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मैं कैसे ये इस्टेब्लिश कर लूँगा कि फ़लाना शख्स मिसिंग हुआ और इसको मिसिंग हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है या हमारी पुलिस ने किया है या हमारी FC ने किया है या मैंने किया या आपने किया है। तो इसके लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए देयर इज़ अ मेथड। देखें, वंस अगेन आई से आई एम नॉट जस्टिफाइंग, प्लीज़ टेल मी कि क्या ये रीजन में सिर्फ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस है? रीजन में क्या पंजाब में नहीं है, क्या KP में नहीं है, क्या इंडिया में नहीं है, क्या US में नहीं है, क्या दुबई में नहीं है? I understand when you say कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो आर्गूमेंट दे रहे हैं अगर कहीं और हैं भी तो इट डजंट मीन कि आपके सूबे में होने चाहिए। अगर बलूचिस्तान हुकूमत जेन्युइनली चाहती है कि ये मसला हल हो तो इसमें जो जेन्युइन केसेस हैं आप उनकी इंक्वायरीज क्यों नहीं करते, आप उनको हल क्यों नहीं करते? स्टेट ने देखें यही चीज़ें सामने रखते हुए, गवर्नमेंट्स ने यही चीज़ें, जिस तरह आपने कहा पुलिस में FIR नहीं होती, देयर इज़ अ कमीशन कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के लिए एक कमीशन बनाई गई है और फिर UN ने भी कुछ क्राइटेरिया दिए इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का। वो कमीशन पिछले 10-15 साल से काम करे और मैंने आपको कहा 80% केसेस, दिस इज़ अ गुड रिजल्ट। Second, I request you, please go and meet some mothers of those who has been kidnapped by these Ferraris. बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि बहुत सारी ऐसी माएँ भी हैं जिनको ये पता है कि उनके बेटे गुम हैं लेकिन वो गए हुए हैं फरारी कैंप्स में। इन सारी लड़ाई को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको प्रोपेगेंडा टूल बनाकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जेन्युइन इशू है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट to resolve it through the commission which is already established by the state of Pakistan, by government of Pakistan. अदादो शुमार के इस खेल के बाहर वो ख़वातीन हैं जो अपने प्यारों की वापसी की जंग लड़ती ही चली आ रही हैं और उनकी क़यादत अब डॉक्टर महरंग बलोच के हाथ है। डॉक्टर महरंग बलोच ने मुबैना जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की बुनियाद रखी और इसके बाद 2023 में तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया। इस मार्च में ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हमारे लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें जीने दिया जाए, हमारी सरज़मीन हमें जीने दिया जाए, हमसे जो जीने के राइट्स हमसे ले लिए गए हैं वो हमें दिए जाए। राइट टू सर्वाइव, राइट टू लिव। उस राइट टू लिव के लिए मतलब हमें दरपदर की ठोकरें नहीं खानी पड़े, हमारे वसाइल का हक हमें दिया जाए। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। जो वायलेंस के ज़रिए बलूचिस्तान को रूल किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान में अगर अदारे हैं तो उनको इख्तियार दे बनाया जाए। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई भी माँ मजबूरन अपने बच्चे को अपने ज़मीन से अलग ना करें, ख़ुद से अलग ना करें, वो ज़िंदगी जी सके, उनकी ज़िंदगी कैंपों में ना गुजरे, उनकी ज़िंदगी दूसरे मुल्कों में ना गुजरे।
ان کی زندگی درپدریوں میں نہ گزرے، ان کی زندگی ان کے خاندان والوں کے ساتھ گزرے. کیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ ہمارے دل سے ڈر، وہ خوف ختم ہو چکی ہے. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو واپس لانا ہے، کیسے بھی کر کے واپس لانا ہے. تو وہ ڈر، وہ لڑکی ہونا، وہ سب اب ختم ہو چکا ہے. یہ کیمپ شاید مسنگ پرسنس کی فیملیز کے لیے امید کا واحد مرکز ہے. 2009 میں کچھ ایکٹیوسٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن آج سینکڑوں خواتین یہاں آتی ہیں اور اپنے گھر کے لاپتہ افراد کی واپسی کے لیے احتجاج کرتی ہیں. بلوچستان میں جاری یہ کانفلکٹ اب ان خواتین کی تیسری نسل تک پہنچ گیا ہے. جب میں 6-7 سال کی تھی نا تو میں نے اپنی امی سے پوچھا میرے ابو کدھر ہے. وہ ابھی تک نہیں آئے. میں جب سے پیدا ہوئی میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ ابھی تک نہیں آئے. کوئی اپنی اولاد کے لیے تو آتی ہے. 10 سالہ معصومہ کے والد اس وقت مبینہ جبری گمشدگی کا نشانہ بنے جب وہ صرف 3 ماہ کی تھیں، لیکن آج وہ بھی سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کاش میرے ابو بھی ہوتے ہیں. وہ ہوتے نہ میں اس زندگی میں ہوتی، نہ میری زندگی ایسے سڑکوں پر گزرتی اور نہ ہی میں سڑکوں پر آتی. مجھے اپنے ابو کی جو ہے نا سب سے اچھی اس کے آئیز دکھتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے آئیز میرے آئیز کی طرح. میں جب نا نیند سے اٹھتی ہوں تو اپنے ابو کی فوٹو دیکھتی ہوں. جب اسکول جاتی ہوں اس سے پہلے دیکھتی ہوں، اور جب کتاب نکالتی ہوں، جتنے بھی پیریڈ ہوتے ہیں تو اس میں نا بک نکالتی ہوں تو دیکھتی ہوں. وہ پریس کلب کے باہر آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، میرے بیگ دو میں آپ کو ایک چیز. اور جب وقت ملے اپنے والد کو وہ خط لکھتی ہیں جو آج تک بھیجے نہیں گئے. میں نے اپنے ابو کے لیے ایک خط لکھی، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. پیارے بابا جان آپ کب آؤ گے؟ میں جب بھی کھانا کھاؤں یا پانی پیوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے. بابا جان آپ کدھر ہو؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے. آپ کے بنا مجھے نیند نہیں آتی. میں آپ سے ملوں، آپ کا چہرہ دیکھوں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان کے سب سے پیچیدہ اور غیر حل شدہ مسائل میں سے ایک ہے، جہاں نسل در نسل لوگ گمشدگیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. جنت بی بی، سائرہ بلوچ، معصومہ اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جیسی خواتین اپنے لاپتہ پیاروں کی تلاش میں احتجاج کر رہی ہیں. مسلسل تلاش کے باوجود ان کے دل میں امید ہے اس دن کی جب بلوچستان میں ان علامتی قبرستانوں کی ضرورت نہیں رہے گی. پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی رسم یا رواج جو خاندان کی کسی خاتون کو اس کے وراثت کے حق سے محروم کر دے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس خادم حسین ایم شیخ اور جسٹس امیر محمد خان پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے 21 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ضلع بنوں کے کچھ حصوں میں رائج، چادر یا پرچی کے رواج کے خلاف دائر درخواست پر سنایا. شرعی عدالت نے خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کرنے کے عمل کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے مجرمانہ اقدامات پر سزا دی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت کا خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف بڑا فیصلہ. روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا گیا. جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا. شریعت کورٹ کی خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف
फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। अपनी दरखास्त में सैयदा फौजिया जलाल शाह ने न सिर्फ बन्नू में राइज रिवायात पर रोशनी डाली थी, बल्कि अपनी वालिदा सैयदा इफ्तिखार बीबी के लिए भी रिलीफ की दरखास्त की थी, जो मुबैना तौर पर मुकामी रस्म और रिवाज की वजह से अपने वालिद और शोहर की विरासत में हिस्से से महरूम थीं। ताहम वफाकी शरई अदालत ने इस दरखास्त को जुज़वी तौर पर कबूल कर लिया, जिसमें दरखास्त गुजार मुकामी रस्म को गैर इस्लामी करार देने का मुतालबा कर रही थी। दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में सूरत निसा की आयात 7, 11, 12 और 14 का हवाला भी दिया, जिसमें खवातीन की विरासत के मसले पर बहस की गई है और मुसलमानों को हिदायत की गई है कि वो इन आयात के मुताबिक मैयत के हर अहल कानूनी वारिस को विरासत का मुनासिब हिस्सा दें। वफाकी शरई अदालत ने फैसले में वजाहत की है कि दस्तयाब आदाद व शुमार और मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट से ये वाज़ेह है कि इस तरह का मुजरिमाना अमल जिसमें खवातीन को विरासत के हक से महरूम किया जाता है बहुत आम सी बात है। 300 बरस पहले बर्र-ए-सगीर पर हुक्मरानी करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब से इंडिया में नफरत इस वक्त उरूज पर है। ये नफरतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार इस एहतजाज ने तशद्दुद को बहुत बढ़ावा दिया है और बादशाह औरंगजेब के मकबरे को मिसमार करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू ग्रुपों की जानिब से औरंगजेब के मकबरे को मिसमार करने का मुतालबा करने और शहर में तशद्दुद को हवा देने के बाद कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस बारे में मजीद सुनिए इंडिया से शकील अख्तर की ये रिपोर्ट। इंडिया के रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता दिनों हिंदू तंजीमों की जानिब से मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र खोदने के मुतालबे पर जोर देने के लिए जगह जगह मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों के दरमियान नागपुर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पुरतशद्दुद टकराव हुआ था। इस वाक़े के बाद दर्जनों अफराद हिरासत में लिए गए हैं। हुक्मरां बीजेपी और शिवसेना के कई रहनुमा मुगल दौर के बादशाह औरंगजेब की कब्र उखाड़ देने का मुतालबा कर रहे हैं। आज हम आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को भी हम निवेदन दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो कब्र हटाए, अन्यथा जैसे कार सेवा बाबर के समय हमने की थी, वो कलंकित ढांचा हटाया, वैसे महाराष्ट्र में कार सेवा होगी और ये भी कलंकित ढांचा हटाएंगे। कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। औरंगजेब तारीख में एक मुतनाज़ा बादशाह थे जिन्हें कई हिंदू मंदिरों को मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार माना जाता है। 1707 में इंतकाल के बाद औरंगजेब को महाराष्ट्र के खुलदाबाद कस्बे में एक सूफी की दरगाह में दफन किया गया था। ये कब्र खुले आसमान के नीचे मिट्टी की बनी हुई है। मुकामी लोगों का कहना है कि कब्र का तनाज़ा सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए पैदा किया गया है। हाँ भाई, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तो जब तक इनकी जो है तो वोट कैसे मिलेंगे इनको, जब तक जो है तो सेकुलर बात करेंगे नहीं, ये शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इनको इसका फायदा होगा। लेकिन ये तनाज़ा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस्तांबुल के मेयर और सदर तैयब उर्दुआन के मुमकिना सदारती हरीफ एकरम इमाम ओलो की गिरफ्तारी के बाद तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं और शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इस बारे में सुनिए हुसैन अस्करी की ये रिपोर्ट। इस्तांबुल के मेयर और सदर उर्दुआन के मुमकिना सदारती हरीफ एकरम इमामोलू की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। दसियों हजार लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इस्तांबुल समेत कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। वो नारे लगा रहे थे, इमामोलू तुम अकेले नहीं हो, हम सब गिरफ्तार हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल किया और 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एकरम इमामोलू को मुबैना करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कर्दिश पार्टी PKK के साथ रवाबित के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। हुकूमत के नाक़दीन का कहना है कि इमामोलू की गिरफ्तारी सदर उर्दुआन के सियासी हरीफ को रास्ते से हटाने की एक कोशिश है। दूसरी जानिब तुर्क हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के मुहर्रिकात सियासी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी कानून से बालातर नहीं है।
22 बरसों से इख्तदार में कभी वजीर आज़म और कभी सदर तैयब उर्दवान के सामने एकरम ओलू की शक्ल में एक मजबूत उम्मीदवार सामने आया है। इमाम ओलू ने सन 2019 में इस्तांबुल के मेयर के इंतखाब में सदर उर्दवान की जमात AKP के उम्मीदवार को शिकस्त दी, जो सदर उर्दवान के लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका था। सदर तैयब उर्दवान भी सन 2003 में वजीर आज़म बनने से पहले इस्तांबुल के मुंतखब मेयर थे। इमाम ओलू ने हिरासत में लिए जाने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में कहा कि अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और वो जमहूरियत और इंसाफ के लिए साबित कदम रहेंगे। एकरम इमाम ओलू हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मुमकिना उम्मीदवार बनने की प्राइमरी में हिस्सा ले रहे हैं और उनके अगला सदारती उम्मीदवार बनने के ज़्यादा इम्कानात बताए जा रहे हैं। एकरम इमाम ओलू की गिरफ्तारी तुर्क सियासत में एक नया मोड़ साबित हो सकती है। क्या इमाम ओलू वाकई सदारती दौड़ से बाहर हो जाएंगे या तुर्की में एक नया सियासी तूफान आने वाला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीनों को मुबैना तौर पर हिरासा करने के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजारों को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे दिया है। इस ज़िम्मन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने जलालुद्दीन व दीगर अफगान पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्त निपटाते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद बतौर पनाह गुज़ीन रजिस्टर किया है। दरख्वास्त गुजारों को कार्ड के ज़ायदुल मयाद होने तक हिरासा करने और ज़बरदस्ती बेघर करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। याद रहे कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीनों के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत 30 जून 2025 तक है और इस नोटिफिकेशन में हुकूमत से कानून पर सख्ती से अमल करने की हिदायत मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी है। साइंसदानों का कहना है कि डार्क एनर्जी नामी एक पुरअसरार कुव्वत जो कायनात की तोसी का बाइस बनती है, वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है। ये दरियाफ्त जो अभी इब्तिदाई मरहले में है, उस मौजूदा नज़रिए से मुतसादम है जिसे जुज़वी तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश किया था। इन नताइज की तस्दीक के लिए मज़ीद डाटा की ज़रूरत है, लेकिन इस तहकीक में शामिल साइंसदानों में जोश व खरोश बढ़ रहा है। कुछ का ख्याल है कि वो फल्कियात की दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक ऐसी दरियाफ्त के दहाने पर हैं जो कि हमें कायनात के बारे में हमारी तफहीम और नज़रिए पर बुनियादी तौर पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर सकती है। यहाँ तक कि इस मुताले में शामिल कुछ इंतहाई मोहतात मुहक्किकीन जैसा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑफर लाहाव इन नए शवाहिद से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने BBC न्यूज़ को बताया है कि ये एक ड्रामाई लम्हा है। हो सकता है कि हम कायनात के बारे में अपनी समझ बूझ में एक मिसाली तब्दीली का मुशाहिदा कर रहे हों। 1998 में डार्क एनर्जी की दरियाफ्त अपने आप में चौंका देने वाली थी। उस वक्त तक ये नज़रिया था कि कायनात की तख्लीक की वजह बनने वाले धमाके यानी बिग बैंग के बाद कशिश शकल की कुव्वत की वजह से इसका फैलाव सुस्त हो जाएगा। लेकिन अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी साइंसदानों के मुशाहिदात से मालूम हुआ कि ये दर हकीकत तेज़ हो रहा है। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे कार फरमा कुव्वत क्या है, लिहाजा उन्होंने इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया, जो उनकी समझ की कमी की निशानदेही भी करता है। और सामीन, अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, मगर सैरबीन के आखिर में अब तक की खास खबरें।